Hello students. So today we are doing the last topic of this chapter, planning. Okay, we are discussing about the various types of plan. Actually, plan can be divided in so many bases. It can be a short term plan, it can be a long term plan. So we will discuss about the various types of plans in this chapter and how these plans are utilized for the firm. Okay. So here is the glimpse of all the types of plan. We categorize plans on the basis of length and on the basis of usage. When we categorize on the basis of length, there are single use plans and standing plans, which can further be categorized. Single use plans, there are three types of single use plan: program, project and budget. And there are four types of standing plans: policies, procedures, methods and rules. Okay. And on the basis of usage, we have 8 types of plan: objectives, strategy, policy, procedures, method, rules, programs and budget. As you can see in this diagram that there is the similarity between some plans on the basis of length and on the basis of usage. Like policy comes under the standing plan, procedure standing plan, method standing plan and rules standing plan. Programs and budgets comes under the category of single use plan, and these two does not come in any category. Why? Because objectives are something which are required for single use as well as for standing plans, and strategy is something like which cannot be categorized in single use and standing, because strategy is a real time situation that as per the need of hour it has to be prepared. So we don't categorize strategy in single use and standing, and objective in single use and standing. Now we will discuss each and every type of plan in detail. A single use plan is developed only for one time project or one time event. Actually, this is planned that course of action for that course of action which is not likely to be repeated in future. Okay, these are of non-recurring activities, because this plan is for prepared for any specific purpose. When we make any plan for any specific purpose कैसे? जैसे कि हमने कोई प्लान बनाया कि आज हमें क्या करना है, टुडे, आज की डेट में हमें टुडे हमें क्या करना है, हमारा आज का शेड्यूल क्या है, तो वो सिंगल यूज़ प्लान है, स्पेसिफिक. या अभी एक कोविड की हमारी प्रॉब्लम है, कोविड एक हेल्थ इशू हमारे पास है, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्लान बना रहे हैं. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने नोटिफिकेशन निकाला कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे या एडमिशन प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक प्लान्स के कैटेगरी में आएगा. वो आपका स्टैंडिंग प्लान नहीं होगा, क्योंकि वो आपका वन टाइम इवेंट के लिए है. जैसे कि बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन किया है कि दिस रूल इज़ meant only for this academic year और up to this date. गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेडलाइंस को पोस्टपोन कर दिया आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, और भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स के रिन्यूअल की डेट्स एक्सटेंड की हैं. तो वो क्यों? स्पेसिफिक प्लान की कैटेगरी में है. सो लेंथ डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट. इट कैन बी फॉर अ डे, इट कैन बी फॉर अ वीक, इट कैन बी फॉर अ मंथ. ओके, बिकॉज these plans consist of details and the name of employees who will be responsible for accomplishment of this project. Fine. एक मार्केटिंग कैंपेन है, हमें एक मार्केटिंग कैंपेन लेना है,
वो 3 डेज़ का कैंपेन है, तो हमने 3 डेज़ के लिए प्लानिंग करनी है. दैट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान. ओके, कोई सेमिनार है, हमें एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, हमारा 2 डेज़ का सेमिनार है, तो 2 डेज़ के सेमिनार के लिए क्या क्या काम करना होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सी एक्टिविटी किसकी जिम्मेदारी पर होगी, वो सब आपके सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं. ठीक है, तो दीज आर सिंगल यूज़ प्लान्स. नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब विच आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. इनको हम इसीलिए रिपीटेड प्लान्स भी कहते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर होते हैं. एक बार बन गए, उसके बाद ओवर द ईयर्स ये चलते रहेंगे, और एज पर द नीड ऑफ आवर अगर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने भी पड़े तो इनमें हम कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ चलेंगे. तो स्टैंडिंग प्लान्स की कैटेगरी में हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, वो सब आते हैं. क्यों? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल ऑपरेशन स्मूथली चलें, इस वजह से हमने स्टैंडिंग प्लान्स बनाए. लाइक हमने स्टैंडिंग प्लान ये बनाया कि हमारी मार्केटिंग पॉलिसी क्या होगी, हमारी मार्केटिंग पॉलिसी क्या होगी, ये हमारा स्टैंडिंग प्लान है. रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होगी, ये हमारा स्टैंडिंग प्लान है कि हम पहले रिटर्न एग्जामिनेशन लेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे. आप लोगों की एग्जामिनेशन पॉलिसी, आप लोगों का कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, आपका कितने मार्क्स का थ्योरी होगा, ये सब आपके स्टैंडिंग प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं. तो स्टैंडिंग प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं. टाइम टू टाइम अगर उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे, बट बेसिकली वो चेंज नहीं होते हैं. So this is the difference between the single use plan and standing plan. That single use plan are one time project, but this is over and over again. It is carry out a single course of action, but this is occur regularly, and this is narrow. That's why, because हमने कहा ना single use plan तो for a day, for a week, for a month होता है, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, बट ये आपका ओवर द ईयर्स चलता है स्टैंडिंग प्लान. तो ये वाइड है. ये प्लान की स्टेबिलिटी कब तक है? जब तक वो इवेंट है, बट ये स्टेबल रहता है. बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स हमारे सिंगल यूज़ प्लान के एग्जांपल्स हैं, बट पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स हमारे स्टैंडिंग प्लान के प्रोजेक्ट्स हैं. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स. The first step in planning is setting objectives. तो objectives को हम क्या कह सकते हैं कि objectives can be set to be the desired future position that the management would like to reach. वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे मैनेजर जाना चाहता है. हमने प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप यही किया था कि to set objectives. So objectives are very basic to the organization. Fine. They are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations, and therefore this is generally set by top management. जो हमारा top management है वो इन्हें set करता है, और ये overall business planning को एक guide provide करते हैं. Like हमको 10% sales increase करनी है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री होनी चाहिए. ठीक है, या आप लोगों के लिए जैसे ऑब्जेक्टिव है कि हमें मैक्सिमम बेस्ट स्कोर लेना है अपने एग्ज़ाम में, या आपकी लाइफ में आपकी 12th बोर्ड्स के लिए ऑब्जेक्टिव है. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए. सो ऑब्जेक्टिव शुड बी इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स. मैंने कहा हमें स्कोर लेना है, हमें 100% स्कोर लेना है. तो अब अगर मेरे उससे कम रहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ओवरऑल जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो उसी के आसपास चलेगी. दिस इज़ ऑब्जेक्टिव, एंड दिस शुड बी इन द रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट में क्यों होनी चाहिए? सो दैट द एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन्ड, नो मैनिपुलेशंस कैन बी डन. सो एक टाइम पीरियड, हमारे पास एक टाइम पीरियड भी डिसाइड होना चाहिए कि हमें कितने टाइम में ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है.
ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, देयर मस्ट बी अ टाइम स्पैन फिक्स्ड। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी को ना तो हम सिंगल यूज़ में डाल सकते हैं और ना ही इसको हम स्टैंडिंग में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रॉड कॉन्टोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्यों? बिकॉज it refers to future decisions defining the organization's direction and scope in the long run. स्ट्रैटेजी हमारी एक ओवरऑल है, आप किस काम को किस तरीके से करेंगे वो हमारी स्ट्रैटेजी है। जैसे कि एक कंपनी ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि हमें अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, तो उसने ये देखा कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा हमारे कस्टमर कौन है, फिर उनके डिमांड क्या है, व्हाट दे डिमांड, फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड वो ज़्यादा करते हैं, किस वैरायटी की, हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी, हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो ये सब मिला के हमारा स्ट्रैटेजी बनता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ एक स्टेप नहीं है, स्ट्रैटेजी मतलब सो मेनी स्टेप्स व्हेन क्लब्ड टुगेदर एज पर द need of business environment, as per the consideration of changes in the economic, political, social, legal and technological environment, because they all affect an organization. So strategies usually take the course of forming the organization's identity in the business environment. Okay, तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट डायमेंशन विच वी कंसिडर डिटर्मिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, देन एलोकेट रिसोर्सेज सो एज टू मैक्सिमाइज fulfillment of these objectives, then after allocation adopt a particular course of action so as to use these resources and achieve these objectives. These 3 dimensions define the strategy. Okay, नाउ पॉलिसीज़ बहुत जनरल स्टेटमेंट होती हैं पॉलिसीज़ हमारे लिए कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है तो उसको बेस जो बनता है, हमारी हर स्ट्रैटेजी का बेस हमारी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी को डिफ़ाइन करने के लिए हम कैसे उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे वो पॉलिसी पर बेस्ड होता है। पॉलिसी उसको एक बेसिस प्रोवाइड करती है, मैनेजरियल एक्शन को एक गाइड प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक स्कूल में एडमिशन की पॉलिसी क्या है कि इतने % वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, या आप लोगों की स्ट्रीम चूज़ होते हैं उनकी पॉलिसी होती है। अब 12th के बाद कॉलेजेस में एडमिशन की अपनी एक पॉलिसी होगी, जिसके पास मैथ्स है वो कौन से कोर्सेज ले सकता है, जिसके पास मैथ्स नहीं है उनके पास कौन से कोर्सेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे अभी CBSE ने मैथ्स का भी निकाल दिया कि मैथ्स के लिए एक पॉलिसी कर दी कि दोज हु वांट टू कंटिन्यू मैथ्स फॉर लॉन्गर पीरियड एंड दोज हु डोंट वांट टू कंटिन्यू मैथ्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो इस तरह से ये पॉलिसीज़ हैं। सो इट इज़ अ ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। नाउ ऑल द मैनेजर्स एंड all the employees under that manager, they have to work within the policy framed by the top level management. कुछ पॉलिसीज़ हमारी कंपनी पॉलिसी होती हैं जो क्लाइंट्स के लिए होती हैं। जैसे कि आपने अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदा तो एक पॉलिसी आती है कि इतने टाइम में आपको रिटर्न कर सकते हो, या रिटर्न करने की पॉलिसी उनकी अपनी अलग होती हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। फिर कुछ माइनर पॉलिसीज़ जो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ का हम छुट्टियां देंगे उनको तो उनकी कितनी पेड लीव्स होंगी, कितनी अनपेड लीव्स होंगी। और मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट फॉलो करती है। तो ये सब पॉलिसीज़ हमारे पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाना, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन की कहाँ कहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन लेना है, हमें स्टेशनरी या कोई भी हमें सामान ख़रीदना है तो वो हमें टेंडर के थ्रू लेना है या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लेना है। तो ये सब पॉलिसीज़ का ही हमारा पार्ट होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉलिसीज़ विच हेल्प्स फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस। ओके, देन प्रोसीजर्स, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है दैट दिस इज़
routine steps to carry out all the activities to be going on in the organization. That they specified all the activities in chronological order. They defined the steps. This is step 1, then this is step 2, then this is step 3. Fine. Procedures are specified steps to be followed in a chronological order to achieve the objective and in special circumstances, and they are to be followed by insiders. प्रोसीजर हमेशा हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ उस सारे प्रोसीजर को फॉलो करें, और जितने भी हमारा प्रोसीजर बनता है ये प्रोसीजर बनता पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ही है. इस पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए इस all the steps to be carried out within the broad policy framework is called procedure. So the sequencing of steps or actions to be taken are generally to enforce a policy and to attain predetermined objectives. तो हमने क्या कहा कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो पॉलिसी से भी रिलेटेड हैं और ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड हैं. सो पॉलिसीज and procedures are interlinked with each other. ठीक है. How they interlink? Because all the procedures are made within the framework of policy. Okay. So by this way all the methods are complementary to each other. They all give support to each one. Then methods. Methods means the prescribed way. हर काम को करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है. ठीक है. तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक आपने मैकडी का बर्गर देखा, मैकडी के बर्गर को बनाने के लिए हमारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड वे है. तो जो हमने प्रोसीजर फिक्स किया, प्रिस्क्राइब्ड किया, वो मेथड है. ओवरऑल द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड द ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स इज कॉल्ड मेथड. तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफाइंस वन स्टेप एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन द प्रोसीजर. आपके पास प्रोसीजर में एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है. अब इस पर्टिकुलर स्टेप को कैसे करना है, दैट इज मेथड. दिस इज वन वे ऑफ डेफिनेशन. देन हमारे पास इन सब प्रोसेस को करने के बाद ये सारे प्रोसेस जब क्लब हो जाते हैं तो दिस चेन इज प्रोसीजर. बट आफ्टर फॉलोइंग दिस चेन वेयर दिस विल गो, दैट इज अ मेथड. तो हम ये कह सकते हैं कि मेथड इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्रोसीजर को सपोर्ट करता है. प्रोसीजर के हर स्टेप को काम करने के तरीके को भी मेथड कहेंगे और एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर पे शिफ्ट होने को भी हम मेथड कहेंगे. मेथड से क्या होता है, इट सेव्स टाइम. अगर हमने अच्छा मेथड चूज़ किया है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, मनी सेव करता है, आपके एफर्ट्स को सेव करता है. सो मेथड सेव्स so much of time, energy, efficiency and time. Suppose इसमें हम एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि अगर हमें लोअर लेवल पे ट्रेनिंग देनी है तो लोअर लेवल पे ट्रेनिंग देने के लिए हमें कौन से मेथड्स लेने चाहिए ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. लेकिन अगर हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ को देनी है तो उनके लिए हम लोग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे. तो अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं. रूल्स के तो नाम से ही डर लगता है ना. रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं, व्हाट इज़ टू बी डन. इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. सर्टेन, दिस इज 100% सर्टेन एंड दैट्स व्हाई दे आर रिजिड. एंड नॉन एडहेरेंस, अगर आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, नॉन एडहेरेंस ऑफ रूल्स आर पनिशेबल. ये आपके लिए पनिशेबल होती है. सो नो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड. अब पॉलिसी और रूल में फिर क्या डिफरेंस हुआ, ये तो एक बात हो गई. नहीं, रूल्स हमारे पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही बनते हैं. अगर हमें रूल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं है, बट इफ़ एनी compromise is needed, then we have to change our policy first. Only then rules can be changed. Rules का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है. रूल्स बन गए तो बन गए. रूल इज रूल. बट इफ
there is a need to change any rule, first they have to change policy. Fine. Now प्रोग्राम वो है जो सबको लेके चलता है. मतलब हमने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, जितनी भी टास्क हैं हमारी, टास्क मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जितने भी हमारे ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारा बजट है, बजट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, इन सब को मिला के हमारा प्रोग्राम बन जाता है. तो दिस इज़ अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लान. तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स will include the entire gamut of activities as well as organizational policy and all the business plan. Fine. So this is program. Budget. बजट हमारी, बजट के नाम से हमें पता लग जाता है कि ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स है. सो अ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स. लाइक सेल्स बजट. सेल्स बजट हमें क्या बताता है कि हमारे एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होंगी, हमारी प्रेजेंट सेल्स कितनी हैं. हमारा रिवेन्यू बजट बताता है हमारा रिवेन्यू कलेक्शन कितना होगा. हमारा प्रोडक्शन बजट हमें बताता है कि हाउ मच प्रोडक्शन विल बी डन. रॉ मटेरियल बजट, हाउ मच रॉ मटेरियल नीडेड टू बी परचेज्ड. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट. आपका एक कैश बजट होता है विच शोज that how much cash receipts and cash payments will be paid. So क्यों हम बजट बना रहे हैं? Because it is used as a control device. Because in future when we do work in actual circumstances, तो is there any deviation? अगर है तो उसको हम टेक केयर करें, उसके लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, करेक्टिव एक्शंस लें, इसलिए हमें बजट बनाने ज़रूरी हैं. ओके. So by this way I conclude your chapter 4. In case you face any problem in any of the chapter which we discussed, you can ask in the comment box. I will leave the link for the required query of you, or you can mail me at the rajshreetutorials@gmail.com. Thank you so much and good luck to all of you.